सरल बोलते हैं, जितने एपिक्स हैं अपने भारत के, रामायण है, महाभारत है, हनुमान जी हो गए, अर्जुना जी हो गए, उनके बारे में बहुत ही अपनी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। मैं उनको बुलाने के पहले एक बहुत ही छोटा सा वाक्य आपके साथ प्रस्तुत करता हूं। एक टॉक शो हुआ था ऋषि नंदा जी के साथ, भोपाल में हुआ था और महाभारत पे हुआ था। तो स्पीकर ने इनसे पूछा था कि रामायण और महाभारत में फर्क क्या है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। मैं इनकी सरलता से प्रभावित होकर ये चीज़ बता रहा हूँ, तो तब आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इन्होंने कहा, एक जॉइंट फैमिली में आप जो लड़का रहता है वो जब तक अपने भाई के बच्चे को अपना बच्चा मानता है तब तो समझ लो घर में रामायण है, लेकिन जिस दिन वो अपने भाई के बच्चे को भाई का बच्चा मान लेगा, समझ लो महाभारत शुरू हो गई। मैं इसी के साथ I'll call Mr. Rishi Nanda on the stage. His topic today is I am a warrior. Rishi, please come. Hi, good evening. So first, thank you so much for the opportunity. It's always a pleasure coming to Bhopal because Bhopal is my sasural also. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है भोपाल आना बार बार. And thank you Manoj sir, thank you RC sir for this opportunity. So let's start the talk. Now before I start just to give you a quick background of what I do. वैसे तो मनोज सर ने बोल दिया है, but still I'm a storyteller and I believe that our ancestors were absolutely brilliant because there was no pen drive, there was no data storage, there was no cloud. So what they've done, the learnings have forwarded to us in a story format. So I take the stories from Indian epics, that is Ramayana, Mahabharata, Vishnu Puran, Bhagavatam Puran, Shiv Puran, Bhagavad Gita, and I link it to the modern day management and concepts and make it simpler for us to implement in a day-to-day life, personal or professional. But before I start, I always start with a disclaimer. I'm not promoting any religion, thought process, religion, belief. It is just for understanding, expression, purpose. So you believe Rama exists, you believe Rama does not exist. Whatever you believe stands true. I'm not here to challenge your belief system. I believe Rama exists. In case you believe Rama does not exist, we both can coexist. There's a story, there's a learning. We'll focus on the learning rather than getting the religious of actual part of it. Fair enough? Okay, so on this note, let's start. Now in Shiv Purana, there's a very beautiful line. कि हर कहानी के हर पात्र के हर घटना के 3 सत्य होते हैं. Your truth, my truth and real truth. And no one speaks the real truth. Everyone speaks the truth that they believe is the truth. So what I'm going to share over here is my version of truth. In case you have a different version of truth, I agree to your version before listening only. That you are right and I'm wrong. Because 5000 साल पहले ना आप थे ना मैं था. Okay, ये कहानी हमको हमारे पूर्वजों से मिली है because we have got multiple books, multiple sources of information. तो हर स्टोरी टेलर अपना कोई ना कोई उसके अंदर वो तड़का ऐड कर देता है और वेरिएंस आ जाते हैं उसके अंदर. Overall the story would remain the same, but the interpretation is where we could differ. Now in case if you like anything that I say, the entire credit goes to Maharishi Vedvyas, go to Maharishi Valmiki, because ये उनकी कहानी है. मैंने तो कहानी में कुछ किया ही नहीं है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ. हाँ, बट अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने गलत कह दिया तो या तो मेरे समझने में गलती हो सकती है या मेरे समझाने में गलती हो सकती है. Our books are very pure and they are very nice, so based on all these what you call disclaimers, finally let's start. Now एक तो होता क्या है ना, जैसे आशीष सर ने कहा था कि लास्ट ईयर उनको बुलाया था स्टार ट्रेक के और बोला कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मैं तो बाबा नहीं हूँ, और ऊपर से अब मुझे स्टेज पे बुला दिया मोटिवेशनल स्पीकर, ऊपर से मेरा नाम भी ऋषि, तो I तो get categorized the Baba also very quickly. So what I do is we have a topic, we take a topic and we have all the agenda to it. So over here, though it's a very short session that we have of 30-40 minutes, there are 3 pointers to it. Any story that I share would come under self-management, team management or goal management, which will be easy for us to learn, introspect and implement. Now why do I do this? Because I believe the stories are so powerful that when you start listening to a story, you start visualizing the story. When you start visualizing the story, reflection happens automatically. When you start reflecting, learning happens automatically. So for next 30-40 minutes, if you could not get distracted, if you could stop multitasking, if you could pay attention, it would be great over here. And on this, let's start. Vese, just for my understanding, I'm assuming and I'm hoping that you all are aware that Ramayana and Mahabharata are 2 different epics.
यू नो द रीजन आई से 4 महीने पहले मेरे साथ एक बड़ा एकदम इंटरेस्टिंग हो गया। मैं फुल एक दिन का महाभारत का सेशन ले रहा था। जैसे वो स्टोरी खत्म हुई, मैंने वैसे कहा कि इस प्रकार भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया। तो फिर एक लड़के ने हाथ ऊपर करके बोला, सर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप मिक्स कर रहे हो कैरेक्टर्स। तो मैं बोला, अभी यू नो व्हेन यू आर सेइंग अ स्टोरी एट टाइम ना, यू गो इन ट्रांस, तो यू आर, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर मैंने अभी क्या कह दिया। मैंने बोला क्या? तो बोलता आपने बोला भीम ने मारा है दुर्योधन को। मैंने तो किसने मारा है? बोलता राम जी ने मारा है। मैंने कैसी बातें कर रहे हो भैया? उन्होंने तो रावण को मारा था। बोलता दोनों को मारा था, मैं बचपन से महाभारत पढ़ रहा हूँ। तो आई एम होपिंग एंड आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस नोट। Once you remove Sri Krishna from the following option, okay, whom do you think is the central character of Mahabharata? Who's the hero of Mahabharata or who's the heroine of Mahabharata? महाभारत किसकी कहानी आपको लगता है अगर आप श्री कृष्ण को साइड कर देते तो? द्रौपदी। Any other name? अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, सॉरी अर्जुन, फेयर इनफ। अच्छा अभी ना एक क्वेश्चन, इन इंडिया महाभारत के कौन से पात्र के नाम पे अवार्ड्स है? अर्जुन अवार्ड एंड एनी अदर अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। नाउ फाइनल क्वेश्चन, ओके, नेम ओनली वन वॉरियर इन द ग्रेट महाभारत वॉर whom अर्जुन किल्ड फेयरली। जहां पे श्री कृष्ण की मदद नहीं ली गई, जहां पे कोई भी युद्ध के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया, जहां पे अर्जुन ने उस योद्धा को 1 to 1 फेयरली मारा है, एक योद्धा का नाम बता दीजिए। वॉर में तो नहीं मारा था। शैल्य महाराज, ओके, जहां तक मेरी मेमोरी जाती है युधिष्ठिर ने मारा था क्योंकि शैल्य महाराज का बून था। तो अर्जुन ने किसको मारा था? एक नाम अभी आपको ध्यान में नहीं आएगा, एक नाम आपको ध्यान में नहीं आएगा। भीष्म पितामह के लिए शिखंडी, जयद्रथ के लिए सनसेट हुआ था, कर्ण तो निहत्थे थे, एक योद्धा को नहीं मारा फेयरली। अच्छा नाउ मेन क्वेश्चन, हु किल्ड दोज 100 ब्रदर्स? दुर्योधन एंड 99 ब्रदर्स, द 100 चिल्ड्रन ऑफ महाराज धृतराष्ट्र, किसने मारा उनको? भीम ने मारा। यू नो आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि जब भी हम लोग पूछते हैं अवार्ड्स कौन है, हीरो कौन है, सब लोग अर्जुन का नाम लेते हैं, या पे गुरु द्रोण का भी नाम आ जाते हैं। और भी कई अवार्ड है, सम ऑफ देम आर एकलव्य अवार्ड, इट्स अ कर्नाटका स्टेट अवार्ड एंड ओडिशा स्टेट अवार्ड, देयर इज अ भीम अवार्ड ऑल्सो, इट्स अ हरियाणा स्टेट अवार्ड। चलो मैं तो एमपी में खड़ा हूँ, कुछ महीने पहले तो मैं हरियाणा में खड़ा था, उनको ही नहीं पता था। देन आई रियलाइज्ड दैट यू नो look at it, if it's the only story, I am purposely using the word story, you can include any story. महाभारत is the only story that I've come across जहां पे जो विलेन को मारता है ना वो हीरो कंसिडर ही नहीं किया जाता है। भीम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हीरो ओनली। मैंने आप सबको पूछा ये क्वेश्चन, मैंने कम से कम 700 बार पूछा इंडिया में, आज तक किसी ने भीम का नाम नहीं लिया। अभी आप सोचो आप भीम हो, you know, and let's take it as a context as a corporate world, okay? Now let's say the war is done, the MD Shri Krishna declares the appraisal results, और आपको पता चलता है आप भीम हो कि सारा ग्लोरी, नेम, फेम, सक्सेस सब अर्जुन के नाम पे चला गया। You'll feel cheated, right? You'll go to Shri Krishna and ask कि प्रभु मैंने अपना KRA खुद भरा, मैंने गोल्ड शीट खुद भरा, मैंने आपको कमिटमेंट दिया था मैं 100 भाइयों को मारूंगा, 99% तो मैंने कंप्लायंस भी फॉलो किया, सब ऑडिट टर्म्स फॉलो किए, एक दुर्योधन के लिए मैंने कंप्लायंस तोड़ा, वो भी प्रभु आपने मेरे को बोला, वरना मैं उसका भी कुछ ना कुछ सोच लेता। और प्रभु एक और मेरा अनुज अर्जुन 3-4 योद्धाओं को मारा, प्रभु आप ही ने कोच किया, आप ही ने मेंटर किया, आप ही ने उनके रूल्स को तोड़वाए और सारा ग्लोरी अपने अर्जुन को दे दिया। ऐसा अन्याय क्यों प्रभु? नाउ दैट इज वेयर माय इंटरेस्ट इन अर्जुन बिगेन, कि अर्जुन में ऐसा क्या था कि नो कि इंडिया में यू नो एज अ मेटाफॉर एवरी चाइल्ड, सॉरी एवरी मदर वांट्स अ चाइल्ड टू बिकम लाइक एन अर्जुन। मैंने खुद अपने बच्चे का नाम पार्थ रखा महाभारत समझने के बाद, भीम नहीं रखा मैंने। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ओवर देम। अब ये जब युद्ध होता है यू नो कौरवों और पांडवों के बीच में, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कौरवों के पास 11 अश्कौनी सेना थी, पांडवों के पास 7 अश्कौनी सेना थी। पर आप जानते हैं एक अश्कौनी सेना कितने वॉरियर्स उसके कॉम्प्रोमाइज होते थे? 2,20,000, 2,20,000 योद्धा एक अश्कौनी सेना होती थी। There were 18, roughly 40 lakh people assembled at Kurukshetra to kill each other. 40 lakh is a generation, 40 lakh is a population of a country, and 40 lakh people assembled over there. Weekend में 1800 लोग मर गए, पूरी दुनिया हिल गई है।
और 40 लाख योद्धा वहां पे असेंबल हो जाते हैं. Now looking at the scale of the war, looking at the magnitude of the war, looking at so many warriors over there, Arjun now puts down his weapons. और श्री कृष्ण को एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि एक द्रौपदी के वस्त्र हरण के प्रतिशोध के लिए क्या इतने योद्धाओं का यहाँ पे आना अनिवार्य है वासुदेव? मुझे इस युद्ध का कारण समझ में ही नहीं आ रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस स्केल इज नॉट रिक्वायर्ड. अब होता क्या है कि आपका बेस्ट एम्प्लॉय अब काम करने से मना कर रहे हैं, तो फिर हम मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे. इंडिया में 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं बचपन से ही. बेटा या तो प्यार से मान जा या वार से मान जा, 2 ही मोटिवेशन होते हैं. इन कॉर्पोरेट टर्म इट इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. कैरेट मीन्स पॉजिटिव मोटिवेशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, इंसेंटिव, बोनस, प्रमोशन, फॉरेन ट्रिप, लंच विद द सीईओ. स्टिक अप्रोच, नौकरी से निकाल देंगे, पीआईपी पे डाल देंगे, तेरे को डिमोट कर देंगे, तेरे को प्रमोट नहीं करेंगे, तेरी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, डर से. अब यहां पे देखते हैं वासुदेव क्या करते हैं. वो पहले अर्जुन को कहते हैं, पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि हे पार्थ, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर, युद्ध करना तेरा धर्म है. जब तू युद्ध जीत जाएगा, तीनों लोक का राजा कहलाएगा, सदियों तक तेरा नाम होगा, इतिहास में तू अमर होगा, यश की प्राप्ति होगी. और अगर तू युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं वासुदेव तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा. अल्टीमेट लेवल ऑफ मोटिवेशन. छोटा छोटा बात मत कर, मैं तेरे को एमडी बनाने का सोच रहा हूं, जस्ट एग्जीक्यूट द टास्क. अर्जुन कहते हैं मैं स्वर्ग को त्यागता हूं, मैं इतिहास को त्यागता हूं, मैं यश को त्यागता हूं, मैं तीनों लोकों को त्यागता हूं, क्योंकि मैं महामहिम भीष्म कुल गुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध नहीं कर सकता हूं. Now when Krishna realized positive motivation is not working, he gets into negative motivation. जिनको तू आज अपना भाई समझ रहा है वो तुझे अपना शत्रु समझ रहे हैं. और अगर तू युद्ध नहीं करेगा, इस रण को छोड़कर चला जाएगा, तेरी निंदा होगी सदियों तक, तेरा जो जीवन है दरिद्रता में चला जाएगा, मृत्यु के तुझे नर्क जाना होगा. अर्जुन कहते मैं नर्क को अपनाता हूं, मुझे युद्ध नहीं करने. नाउ जस्ट इमेजिन यू हैव एन एम्प्लॉय लाइक अर्जुन. यू टेल योर एम्प्लॉय, बेटा ये काम कर दे, 2 लाख रुपए इंसेंटिव मिलेगा. नहीं चाहिए, नौकरी से निकाल दूंगा. अब भी निकाल. देन व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू विद दिस गाय? बिकॉज देयर इज नो डिजायर, देयर इज नो फियर. वो बुद्ध का फेज है. नथिंग इज नाउ दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग. वहां पे ना पूरी भगवत गीता शुरू होती है, जहां पे कृष्ण जो है उन्हें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, धर्म योग, सारे योग समझाते हैं. बट द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता ना इज द एंड ऑफ भगवत गीता. एंड इज एब्सोल्युटली क्लासिक. सब हो गया. अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं कि वासुदेव मैं समझ गया ज्ञान योग क्या है, धर्म योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, मैं सारे योग समझ गया वासुदेव. परंतु वासुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दो. क्या एक द्रौपदी के वस्त्र हरण के प्रतिशोध के लिए इतने योद्धाओं का यहाँ पे आना अनिवार्य है? इट इज ए टिपिकल मैनेजर सबऑर्डिनेट कॉन्वर्सेशन. सबऑर्डिनेट ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैनेजर ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, परंतु उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अभी तक. वो कहते मुझे कारण तो बताओ. तब वासुदेव उन्हें कहते हैं जो तू सोच रहा है ना अर्जुन, तेरी सोच ही गलत है. ये युद्ध एक द्रौपदी के वस्त्र हरण के प्रतिशोध के लिए नहीं है. ये तू ये सोच कि हस्तिनापुर के युवराज ने इंद्रप्रस्थ की रानी के हस्तिनापुर की सभा में वस्त्र हरण करने की कोशिश की है. ये युवराज जब यहाँ का राजा बन जाएगा तो सोच सैकड़ों औरतों का क्या होगा. और ये जो पल है ना अर्जुन, ये ऐतिहासिक पल है. इतिहास तुझे अब इस निर्णय की वजह से याद रखेगा. अगर तू शस्त्र उठाएगा इतिहास तुझे याद रखेगा, अगर तू शस्त्र नहीं उठाएगा तो भी इतिहास तुझे याद रखेगा. और अगर तूने शस्त्र नहीं उठाए और आगे जाके कोई द्रौपदी को कोई दुर्योधन छेड़ेगा और वो अपने पति के पास जाके कहेगी देखो मुझे एक दुर्योधन छेड़ रहा है, तो उसका पति तेरा ही एग्जाम्पल देके कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, अर्जुन कुछ नहीं कर पाया था. और अगर तू शस्त्र उठाएगा तो आगे आने वाले हर दुर्योधन के मन में यह भय रहेगा कि अर्जुन आज नहीं तो कल शस्त्र अवश्य उठाएगा. तू लोगों को दुर्योधन के खिलाफ उम्मीद देना चाहता है या डर देना चाहता है, यह निर्णय तेरा है अर्जुन. और जो तू निर्णय लेगा तो इतिहास में उस निर्णय की वजह से अमर हो जाएगा. नाउ द मोमेंट अर्जुन रियलाइज्ड दैट दिस वॉर is not about his wife, this war is not about his family, this war is not about his kingdom, it's a context setting war and generations will remember this war. That moment Arjun picked up the weapon, and that moment only Arjun became a legend, because Arjun was the only warrior in the great Mahabharata war who fought for a purpose and the purpose was beyond him. बाकी के जितने योद्धा वहां पे थे या तो वो राजा बनना चाहते थे या प्रतिशोध लेना चाहते थे या वचनबद्ध थे, कोई ना कोई उनका एक निजी कारण था. अर्जुन अब एक धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा था, एक एग्जाम्पल के लिए युद्ध कर रहा था, एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए युद्ध कर रहा था, एंड दैट वाज बियॉन्ड हिम. नाउ दिस ना लीड्स टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड गोल्डन सर्कल.
if you have not seen this video, I genuinely request, invest 17 minutes of your life. Watch this guy called Simon Sinek on YouTube. He has got one of the most popular TED Talk called Golden Circle. अगर आपके बच्चे हैं उनको तो please दिखाना. Now what this guy says in a nutshell, he says a person who knows what to do and a person who knows how to do. If you know what to do, if you know how to do, you got clarity. High probability you'll be a successful person. High probability you'll be a successful person. But for these people now, the energy keeps on fluctuating. Their motivation keeps on fluctuating. Because for them, everything is extrinsic. Everything is about the success that they're seeing. Target achieve हो गया, superb. Incentive मिल गया, superb. Foreign trip मिल गया, supremely happy. But होता क्या अगर जब नहीं मिलता है तो they get into a shell. And then for them to come out of the shell, they again need a motivation. तो लेट्स से सर जी और मैं हम लोग सब काम कर रहे हैं, एक कॉन्टेस्ट आता है, पेरिस जाएंगे, सर कॉन्टेस्ट जीते हैं, मैं नहीं जीतता हूँ, सर फेसबुक पे डालते अपनी फोटो आईफिल टावर के साथ, मेरे को टैग करते हैं, ऋषि भाई मिसिंग यू. कोई जरूरत नहीं है करने का, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा है. अब मेरे ऊपर अनड्यू प्रेशर आ गया, फिर मैं अपने कॉल करूंगा कंपनी वालों को, उसको पेरिस भेजा है, मुझे गोवा तो भेजो कम से कम, मेरी बीवी बोल रही तो कुछ करता ही नहीं है लाइफ में, अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया. दैट इज ऑल एक्सट्रिंसिक. एंड दीज पीपल will have a successful career, but they will never do anything great because they have not answered the fundamental question of success. Why are they doing it? The moment you come to know why you're doing it, it is intrinsic. It does not mean that these people do not want award, reward, incentive, bonus, foreign trip and all. They want everything. And irony is, most of the time, they only have everything. Okay, but in case they don't get it, they bounce back the next day. Because for them, they understand in their frame of mind that if I want to script history, if I want to become legend, failure will be a part of my journey. For them, failure is the biggest motivation. For them, failure is the biggest motivation. Okay, now what happens is, how is it linked to us? अभी जैसे मैं कई जब अभी तो it's a short time, so I cannot get into those question answers with you. But हम पूछते हैं लोगों को कि एक अमाउंट बताओ, जो आपके अकाउंट में कल डिपॉजिट हो जाए, विद वन कंडीशन, यू कैन यूज इट, लीगल मनी, टैक्स फ्री मनी, जो करना है लाइफ में तुम करो पैसे का, कोई उसका आपको अकाउंट्स भी नहीं देना है. बट द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू रिटायर. देन लॉट ऑफ पीपल विल से 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, सब लोग बोलते हैं हम लोग रिटायर हो जाएंगे. बट देन आई आस्क देम, if let's say 500 crores, 1000 crores, if money is that criteria, then why Ratan Tata, Mukesh Ambani, Narayan Murthy, Anand Mahindra, Aziz Premji are working? They are working because they have a purpose, and the purpose is beyond them, and that is the reason the wealth is with them. You need to find a purpose of whatever you do. Now Arjun ko ek to purpose mil gaya, that made him a legend. But over here now, it's not only about this. Okay, please understand, the mind needs to know what to do, the body needs to know how to do, it is the soul that needs to know why to do. हमको बचपन से सिखाया गया है, bigger the why, easier the how. Where there is a will, there is a way. We have been trained and taught since childhood. Einstein once said, what and how is exchange of information, why leads to knowledge. But somehow when we start growing, करने का है क्या, कितना मिलेगा बता दे, end of discussion हो जाता है. And that is where he became a legend. Now over here, we're going to look at 4 to 5 points, short stories of Arjun. What, these qualities are universal. You are an employee, you're a self-employed, you are a startup, whatever it is, it will require every one of us. कुछ कहानी आपने सुनी होगी, कुछ शायद नहीं सुनी होगी, but उसका interpretation might differ over there. एक बार होता क्या कि गुरु द्रोण अपने सारे शिष्य को कहते इधर आओ, आज तुम सबकी मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं, जो इस चिड़िया की आंख को चीरेगा वो विजय घोषित किया जाएगा. तो दुर्योधन कहते हैं कि गुरुदेव, हम राजा के बच्चे हैं, पहला अवसर तो हमें मिलना चाहिए. गुरु द्रोण भी कहते हैं करेक्ट है, सैलरी तो तुमसे आ रही है, तुम आके खड़े हो जाओ यहाँ पे, हमारी किताबों में नेपोटिज्म वहाँ से शुरू हो चुका है. वो खड़े हो जाते दुर्योधन वहाँ पे, और दुर्योधन निशाना लगा के खड़े होते हैं. जैसे दुर्योधन निशाना लगाते हैं, गुरु द्रोण पीछे खड़े होते जान पूछ के, और फिर गुरु द्रोण पूछते दुर्योधन को, दुर्योधन क्या तुम मुझे देख सकते हो? दुर्योधन मेरे जैसा तुच्छ प्राणी पलट जाता है, हाँ गुरु द्रोण बेटा तू साइड हो जा. दुशासन आता है, तू भी साइड हो जा. विकर्ण साइड, 100 भाई साइड, युधिष्ठिर साइड, भीम साइड. अब आती है अर्जुन की बारी. अर्जुन निशाना लगा के खड़े हो जाते हैं. वो उनको पूछते हैं, अर्जुन क्या तुम मुझे देख सकते हो? बोलते नहीं गुरु द्रोण. क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहे? नहीं गुरु द्रोण. आकाश दिखाई दे रहे? नहीं गुरु द्रोण. बादल दिखाई दे रहे? नहीं गुरु द्रोण. पेड़ दिखाई दे रहे? नहीं गुरु द्रोण. डाली दिखाई दे रही? नहीं गुरु द्रोण. पत्ते दिखाई दे रहे? नहीं गुरु द्रोण. चिड़िया दिखाई दे रही? नहीं गुरु द्रोण. क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें अर्जुन? वो कहते मुझे से मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है. बोलते तीर चला अर्जुन. वो तीर चला देता है. अगर गुरु द्रोण आज जीवित होते ना, आज वो अपने डिसाइपल्स को बुला के पूछते इधर आओ, क्या तुमको इंस्टाग्राम दिखाई देता है? क्या तुमको यूट्यूब दिखाई दे रहा है?
क्या तुमको फेसबुक दिखाई दे रहा है? मैं कहता हाँ गुरु द्रोण, ऋषि तू तो कभी अर्जुन नहीं बनेगा, साइड हो जा. We do a lot of workshop for telecom company. They showed me a research. I was really shocked. I was really shocked. They showed me research where a person who has a smartphone, an average Indian, is spending 5 hours on mobile phone today. 5 hours. 27% of our time is written off today. Please, I always tell people social media is important. I'll be hypocrite if I say I don't. मेरा तो काम भी वैसे ही आता है. But the point is, are you ruling social media or is social media ruling you? That is where the career is getting decided today. If I finish my work and I go to social media, superb. But if I'm procrastinating my work, that is where the problem begins. मेरे बच्चे का नाम पार्थ है. मैंने जैसे आपको पहले कहा 5-6 साल का था जब मैंने उसको एक कहानी पहली बार बताई. वो तो बेचारा डर गया. उसको लगा ये स्टोरी के थ्रू पापा कोई कहानी बता रहे जिसमें अभी उसको सिर्फ डिसिप्लिन रहना है लाइफ में. मेरे को आके पूछता है पापा वाज अर्जुन अ नर्ड? उसको तो अलग ही प्रेशर था लाइफ में. मैंने अरे बेटा तू समझा ही नहीं. I am not sure if you're aware or no. Arjun was an amazing singer. He was a brilliant dancer. He was a great musician. Shri Krishna के बाद अगर कोई सर्वगुण संपन्न थे उस युग में तो अर्जुन ही थे. What Arjun meant was, whatever work you're doing, that moment your focus should be on that work. If you're sleeping, sleep peacefully. If you're enjoying going for a drive, enjoy the drive. If you're partying, enjoy the party. But if you're working, when you're working, your focus should be on the work. Don't get distracted. That is what his first agenda was, and that was very highlighted. Focus on the goal, set extremely high, what you call standards for your business and for yourself. अब आगे बढ़ते. एक बार गुरु द्रोण ना एक तालाब में स्नान कर रहे होते हैं. वहां पे अचानक से एक मगरमच्छ आ जाता है. गुरु द्रोण के पैरों को अपने मुंह में ले लेता है. गुरु द्रोण के पैरों से रक्त निकलना शुरू हो जाता है. गुरु द्रोण पीड़ा में चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ. वहां पे सब बच्चे घबरा जाते हैं. दुर्योधन चिल्ला के कहते हैं हमें राजमहल में जाके महामहिम भीष्म को लाना होगा. सभी बच्चे भागते हैं राजमहल की ओर. सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के, आई डोंट नो इफ यू कैन सी ओवर द कॉर्नर, अर्जुन अपने शस्त्र उठाता है, उस मगरमच्छ की ओर निशाना लगाता है. अब दुर्योधन अर्जुन के पास जाते हैं. मुझे एट सम लेवल्स लगता है, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, दुर्योधन वाज अ टिपिकल इंडियन. वो जाता है अर्जुन के पास और पूछता है अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन बोलता है जो ज्ञान गुरु ने दिया है वो ज्ञान का उपयोग करके गुरु की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं. दुर्योधन कहते हैं नहीं कर सकता है. तो अर्जुन पूछता है क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं. अरे बट तुम नहीं कर सकते हो, मुझे तो कोशिश करने दे. बोलता हमारा गुरु तो सेम है. जब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं तो तेरे को कैसे कॉन्फिडेंस है? तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स वेस्ट कर रहा है, एरो वेस्ट कर रहा है. चल जाके महल में जाके गुरु को बुला, महामहिम भीष्म को बुलाते हैं. अर्जुन कहते हैं 100 बच्चे गए हैं, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं जाना है, मुझे कोशिश करने दे. अब जब तक इनका ये आर्ग्यूमेंट चलता ना, वहां पर आ जाते महामहिम भीष्म. जैसे निशाना लगाते वो मगरमच्छ गायब हो जाता. गुरु के पैरों से रक्त गायब हो जाता. गुरु मुस्कुरा कर कहते ये तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट था. मैं सिर्फ ये देखना चाहता था मेरे ज्ञान पे भरोसा कितने लोगों को है. किसी को भी नहीं है सिवाय एक अर्जुन के. दैट मोमेंट नहीं टेल्स अर्जुन कि अर्जुन मैं गुरु हूं, मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, परंतु उस ज्ञान पे चलने का साहस नहीं दे सकता हूं. और वो साहस तेरे पास है अर्जुन. इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ योद्धा तू होगा. राम के बाद तेरा ही नाम लिया जाएगा. तेरे जैसा योद्धा नहीं होगा, क्योंकि तू सिर्फ ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता, उस ज्ञान का उपयोग भी करना चाहता है. देयर वाज अ वेरी वंडरफुल लाइन आई रेड. It says that the world has not moved an inch because of great thinkers. The world has not moved even an inch because of great thinkers. It has moved because of executors. ब्रह्मांड में मतलब सोचने में तो ऑनेस्टली मैं एक बार तो सन पे भी लैंड कर लिया था मैंने. बट आई हैव नॉट डन एनीथिंग रिगार्डिंग दैट. द पॉइंट इज सक्सेस लाइज विद द पीपल हु आर रेडी टू एग्जीक्यूट, हु आर रेडी टू फेल, हु आर रेडी टू लर्न, हु आर रेडी टू अनलर्न. एंड अर्जुन हैड दैट क्वालिटी. उसको एक्सेल नहीं कर चुका था तब तक, बट फिर भी वो कोशिश करना चाहता था. नाउ ओवर हियर ना, अच्छा, one statement I'm going to tell you. Please let me know, those who are aware of Mahabharata, whether you agree with the statement or no. कर्ण का, I'm a कर्ण fan also before I say this statement. कर्ण के जीवन का एक उपदेश था. वो अर्जुन को हरा के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था. Yes or no? Was it the same objective of Arjun's life also? No. अर्जुन को कोई लेना देना ही नहीं था उससे. He took Karna as a very serious competitor, but he was not waiting for the world, for the validation. He was not waiting. What happened is now, when they went for that exile, Arjun prepares a list of weapons that he doesn't have.
He did not prepare a list of weapons that Karna has and he doesn't have. He prepares a list of weapons that he doesn't have. He fundamentally believed in self-excellence. That is what he believed in. So he makes a list. उन्हें पता चलता है कि उनके पास इंद्र के अस्त्र नहीं है, महादेव का पशुपत्र अस्त्र नहीं है, माँ दुर्गा का वरदान नहीं है, और 13 साल तपस्या करते हैं, इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र के शस्त्र लेते हैं, ब्रह्मास्त्र मिलता है उन्हें महादेव का पशुपत्र अस्त्र मिलता है, माँ दुर्गा का वरदान भी मिल जाता है. What he believed was, I have to be a better version of myself. There's a very popular line in English, what has got me here will not take me ahead. You have to change something or the other about yourself. You have to keep on learning. You have to keep changing something about your business as well. You know, normally we check with people, we ask, you have a smartphone? They say yes. So we say, have you downloaded any app in that smartphone? Any app, social app? They say yes. So then we ask, अच्छा वो app कितने दिन में update होता है? तो they say 15-20 दिन में हो जाता है. Then I ask them, okay, imagine you download a new social app, you love the app, you're hooked onto the app, but now after 2-3 months you realize the app has not got updated. What will you do? He said, I will look for an alternate app. And then I say, okay, the moment you find an alternate app, you realize that the new app is better than the previous app. It's the firewalls are better, data privacy is better, the customization is better, it understands you better. Now what will you do? He said, I'll uninstall the previous app. I said, no, please remember, we move from one app to the other app because there are a lot of apps available in the Play Store. Yes or no? उससे ज़्यादा India में population is available today. If I stop updating myself, someone else is getting updated somewhere, that person will get the name, fame and glory and my customer also. I live in such a competitive world, I cannot stop updating myself. And Arjun understood at that time only that though I am the best, everyone tells me, I cannot, just enjoy my laurels. I have to keep working hard over that. Now over here, this is one of my favorite story, okay? अब यहाँ पर होता क्या, the war is inevitable, okay? The war is absolutely inevitable. अब यहाँ पे शकुनी कहते हैं दुर्योधन को कि तुम जाओ द्वारकाधीश से आग्रह करो कि वो और उनकी नारायणी सेना हमारी ओर से युद्ध करे. यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन को कि तुम जाओ द्वारका, वासुदेव से आग्रह करो कि वो हमारी ओर से युद्ध करे. दोनों पहुंचते हैं द्वारका. पहले दुर्योधन पहुंचते हैं. वो तो हमको टेलीविजन में बताया जाता है, दुर्योधन पहुंचते हैं, वासुदेव सोए हैं, दुर्योधन कुर्सी देखते हो जाके बैठ जाते हैं. परंतु किताबें कहती है दुर्योधन पहुंचते हैं, वासुदेव सोए थे, दुर्योधन घंटों पर खड़े थे, 4-5 घंटे बेचारा खड़ा रहता है, वासुदेव नहीं उठते हैं. आप भी खड़े रहोगे 4-5 hours, you will also get tired. पूरे रूम में सिर्फ एक ही कुर्सी थी, दुर्योधन जाके बैठ जाते. अब उन 4-5 घंटे दुर्योधन बैठ गए. जैसे वो बैठते कुछ क्षण में अर्जुन आ जाते. अर्जुन देखते वासुदेव सोए हैं, दुर्योधन बैठा है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, वासुदेव को देखते. और जैसे हाथ जोड़ते हैं वासुदेव उठ के पूछते, अरे पार्थ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तब तक वासुदेव सच्ची में सोए थे या सोने का नाटक कर रहे थे. कृष्ण की लीला कृष्ण ही जाने, परंतु हर किताब ये कहती है जब तक दुर्योधन खड़े थे वासुदेव सोए थे. जैसे जागते अर्जुन को देख के पूछते, अरे पार्थ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अर्जुन कहते कि हम चाहते कि आप हमारी ओर से युद्ध करें. जब तक वासुदेव उत्तर दे पाते, पीछे से दुर्योधन चिल्लाते, पहले मैं आया था, मेरा अधिकार है और मैं चाहता हूं कि आप और आपकी नारायणी सेना हमारी ओर से युद्ध करे. अब कृष्ण पलट के देखते हैं, अरे तुम मदद मांगने आए थे तो सर पे क्यों बैठे हो, सामने आके खड़े रहो. At some level ना दुर्योधन अंडरस्टूड कृष्ण. He's like, देखो कृष्ण मैं आके खड़ा था, 4-5 घंटे खड़ा था, थक गया. ये तुम्हारे कमरे में तुमने एक ही कुर्सी रखी है, ये सर पैर की बातें मेरे से मत करो. I understand we are going to now take me. I don't get me involved in all these things. अब कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो मेरे ज्येष्ठ बलराम ने कहा है कि ये पारिवारिक युद्ध है और हमें शस्त्र नहीं उठाने चाहिए, परंतु तुम दोनों आए हो तो मैं तुम दोनों को 2 विकल्प देना चाहता हूं, 2 ऑप्शन देता हूं. एक और मैं जाऊंगा शस्त्रहीन, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा. दूसरी ओर जाएगी मेरी नारायणी सेना, द इनविंसिबल आर्मी. फॉरगेट अ वॉर, दे हैव नॉट इवन लॉस्ट अ बैटल टिल डेट. देने वाला मैं हूं. मैंने पहले पार्थ को देखा है, पहला अवसर मैं पार्थ को देता हूं. पार्थ मांगो, तुम क्या मांगते हो? दुर्योधन के मन में विचार, टोटल वेस्ट कमिंग टू द्वारका. नो, ही विल टेक द आर्मी, निशस्त्र आ जाएंगे. पहले मेरी जो आर्मी है डिमोरलाइज्ड है, ऊपर से वासुदेव आके पांडव 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 अर्जुन 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 करते रहेंगे और डिमोरलाइज कर देंगे. परंतु ना वो कृष्ण को पहचान पाए, ना वो अर्जुन को समझ पाए. अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं, निशस्त्र ही प्रभु आप हमारी ओर आ जाओ. दुर्योधन के मन में जैकपॉट, व्हाट अ ब्लंडर अर्जुन हैज डन, व्हाट अ ब्लंडर ही हैज डन. एंड देन ही टेल्स, वैसे तो आप आते वासुदेव तो हमें अच्छा लगता, परंतु है अनुज अर्जुन मेरा जीवन में, मैं भी अपने अनुज की कोई तो बात मानूं. मैं अपने सीने पे पत्थर रख के आपकी सेना को ले जाता हूं. वो लोग बाहर चले जाते. अब यहां पर ना देयर इज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन. कृष्ण कहते हैं, तेरी हार निश्चित है पार्थ, सदा रहेगा तू उदास.
तेरी हार निश्चित है पार, सदा रहेगा तू उदास। माखन ले गया दुर्योधन, ते पास रह गई सिर्फ छास। अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं मेरी जीत तो निश्चित है वासुदेव, कैसे रह सकता आपका कोई दास उदास। क्या करेगा माखन का दुर्योधन, माखन चोर है मेरे साथ। Okay, now though a devotee of Krishna, Arjun also had a strategic mindset. He understood the Narayani Sena is as good as the Narayan. The army is as good as the general. The army is there, but the general is with me. I know everything about the army. I don't need to panic about it. Now one question, so those who are aware of it, please let me know. What was the relationship between Arjun and Duryodhan in Mahabharata? Brothers? What was their cousin brother, first cousin? What was the relationship between Arjun and Shri Krishna in Mahabharata? Cousins, मामा का बेटा, बुआ का बेटा, brother-in-law, माँ सुभद्रा से विवाह हुआ था. तो let's say if I am Arjun, okay, तो मेरे पापा के साइड से दुर्योधन is my first cousin. मेरी मम्मी के साइड से वासुदेव is my first cousin. What was the relationship of Krishna and Duryodhan in Mahabharata? भाई का भाई कुछ नहीं होता है, कजन कजन ऐसा कोई, मामा का और चाचा का देयर इज नो लिंक. अब ना मेरे मन में बात आई कि अगर मैं वासुदेव होता तो मैं जाके कहता दुर्योधन को, मेरा भाई अर्जुन, मेरा जीजा अर्जुन, मेरा दोस्त अर्जुन, मेरा भक्त अर्जुन, मेरा दास अर्जुन, हम आपके हैं कौन? Why am I obliged to help you? What makes you think that I'm going to prefer you or Arjun? How did you even think of like that? That is where I realize there's something in this scene which I'm not aware of it. There has to be something. क्योंकि इस पे तो मैं ही गोल घुमा दूं, जो ब्रह्मांड चला रहे वो क्यों नहीं बोल रहे. फिर मुझे पता चला कि दुर्योधन had a very beautiful daughter by the name Lakshmana, who was married to Krishna's son Samba. अब कृष्ण की निगाहों से देखो, एक तरफ जीजाजी खड़े, एक तरफ समधी खड़े. Two important stakeholders are there in front of him. अगर समधी का साइड लेंगे ना तो घर में शाम को बहन ने स्याप्पा डाल देना है. जीजा जी का साइड लेंगे तो बहू ने स्याप्पा डाल देना है. कृष्ण के घर पे कंफर्म स्याप्पा था. बट द ग्रेट ओरेटर दैट वासुदेव वाज, ही वाज अ ब्रिलियंट लिसनर. ही वाज अ ब्रिलियंट लिसनर. व्हाट हैपेंड ओवर देयर इज, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु हम चाहते कि आप हमारी ओर से युद्ध करो. दुर्योधन कहते हैं कि हम चाहते कि आप और आपकी नारायणी सेना हमारी ओर से युद्ध करे. वो समझ जाते अंतर सिर्फ सेना का है, और मैं कोई भी ऑप्शन दूं अर्जुन को, अर्जुन मुझे ही सिलेक्ट करेगा. दुर्योधन का उनको भी डाउट था, इसके लिए कैप्चर करके रखते पूरे अपने कॉन्वर्सेशन को अपने हाथ में. और जब अर्जुन श्री कृष्ण को सिलेक्ट करते हैं, अर्जुन इज हैप्पी, ही वांटेड कृष्णा. दुर्योधन इज हैप्पी, ही वांटेड द सेना. कृष्ण इज हैप्पी, ही वांटेड गो ऑन द पांडवा साइड. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन लाइन. I'll say it very slowly, take time to process it. You have to give what you want to give. You should give what you want to give. But the receiver should believe they have got what they wanted, not what you wanted. This is Krishna management. This is exactly Krishna management. So when you are selling a car, sell the car that you want to sell. But the customer should believe they have purchased the product and you have not sold the product. That is sales. That is exactly sales over there. And the beauty lies in listening. You know, all the successful people will say, listen very carefully, extremely carefully. Now this next story, okay, it is, I think, yeah. Now over here, the story is about Arjun, but Arjun is not involved in the story. अब होता क्या है, the 13th day, on the 13th day, the चक्रव्यूह की रचना होती है वॉर में, और उसमें अभिमन्यु की बड़ी बुरी तरह से मृत्यु होती है. अर्जुन तो उस वक्त वापस सुशर्मा से युद्ध कर रहे होते हैं मत्स्यराज के उधर. जब वो वापस आते हैं सूर्यास्त के बाद, उन्हें पता चलता है कि उनके पुत्र की मृत्यु कैसे हुई है, और वो सारा जो ब्लेम होता है ना जयद्रथ के ऊपर डाल देते हैं. और वो जयद्रथ के ऊपर क्यों डालते हैं, एक बैक स्टोरी है उसकी. ये लोग जब वनवास में होते हैं तो जयद्रथ की नजर पड़ती है द्रौपदी पे, और द्रौपदी को अगवा करते, द्रौपदी का समय बिताना चाहते थे. और ये पांचों पांडव आते हैं, जयद्रथ को ऐसे ही हरा देते. युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये चारों जन जयद्रथ का वध तब भी करना चाहते थे. अर्जुन कहते हैं कि ये दुशाला का पति है, हमारी बहन का पति है. दुर्योधन की सगी बहन, हमारी फर्स्ट कजन, ये दुशाला का पति है, हम अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ सकते, इसे जीवन दान दे देते. जयद्रथ इज लाइक, आई एम क्षत्रिय, फुल ऑफ ईगो. इज लाइक, मैं क्षत्रिय हूं, तू मेरा वध कर दे, तू मुझे जीवन दान नहीं दे सकता है, ये मेरा अपमान है. अर्जुन कहता है अगर तू मेरी बहन का पति नहीं होता मैं तेरा वध करता, परंतु मेरी बहन का पति तू जाए यहाँ से. नाउ जयद्रथ ना सो ह्यूमिलिएटेड, वो तपस्या करते हैं महादेव की, और महादेव प्रसन्न होते हैं, और महादेव पूछते हैं क्या चाहिए वत्स बता. बोला मुझे ऐसे अस्त्र शस्त्र दो, ऐसा वरदान दो कि मैं पांचों पांडव और उनकी सेना को हरा सकूं. तो महादेव कहते हैं अरे बेटा, अभी ताजा ताजा मेरे ना पशुपत अस्त्र दिए अर्जुन को, उससे बड़ा अस्त्र तो मेरे पास भी नहीं है. तू चाहे तो मैं तुझे एक वरदान दे सकता हूं, अर्जुन को छोड़ के बाकी चारों पांडव और उनकी पूरी सेना को तू एक दिन के लिए हरा सकता है. अब
जब वो चक्रव्यूह की रचना होती है ना, वो चक्रव्यूह की रचना एक्चुअली हुई थी युधिष्ठिर के लिए, अभिमन्यु के लिए नहीं हुई थी। परंतु दुर्योधन जाते हैं जयद्रथ के पास और उन्हें कहते हैं कि इस चक्रव्यूह के द्वारा हम युधिष्ठिर को अपना बंदी बना लेंगे और युद्ध जीत जाएंगे। परंतु अगर युधिष्ठिर के अलावा अगर और कोई पांडव इस चक्रव्यूह के अंदर आएगा ना, तो उस महादेव के वरदान का तुम उपयोग करना, इस चक्रव्यूह के बाहर खड़ा होना, इन चारों पांडव और उनकी सेना को तुम हरा देना, क्योंकि जो पांडव चक्रव्यूह के अंदर आ सकता है वो अर्जुन जितना ही महान हुआ, मतलब अब हमें उसका वध करना होगा या उसे बंदी बनाना होगा और फिर जाके हम युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे। तो अब अर्जुन को लगता है, राइटली लगता है, कि इस जयद्रथ को जीवन दान मैंने दिया, मेरे जीवन दान के बाद इसको महादेव के दर्शन प्राप्त हुए, महादेव से इसको जो वरदान प्राप्त हुआ इससे मेरे पुत्र का वध करने के लिए इस्तेमाल किया। अब अर्जुन ना प्रतिज्ञा लेते कि अगले दिन सूर्यास्त्र से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। वासुदेव कृष्ण भी कहते हैं ओके, एज सजेस्टेड, विल किल हिम टुमारो। नाउ जयद्रथ इज स्कैर्ड, ऑब्वियसली ही लुक्स एट द भीष्म पितामह लाइक दादा को ही नहीं छोड़ा, इन लोगों ने मुझे क्या छोड़ेंगे, वो तो ऐसे भागना चाहते थे। समहाउ दुर्योधन गोज एंड सेज, अरे व्हाट आर यू डूइंग जीजा जी, अगर आप छोड़ के भाग जाओगे तो मेरे सेना को क्या लगेगा कि मेरे जीजा जी को मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका मनोबल नहीं, अच्छा आप रुक जाओ। somehow he convinces Jayadratha, right? Now before I say this, now there is a possibility that you might have got distracted, you might not have paid attention to story, but my sincere request, coming 2 minutes now, just focus on the following story, because that is where the secret of Arjun lies. अब यहां पर ना जयद्रथ जाते गुरु द्रोण के पास और गुरु द्रोण को कहते हैं कि गुरु द्रोण, कल युद्ध में क्या होगा ये कोई नहीं जानते, या तो कल अर्जुन की मृत्यु होगी या मेरी मृत्यु होगी। परंतु गुरु द्रोण, मेरे मन में एक प्रश्न है जो कई वर्षों से मैं आपको पूछना चाहता था, अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं प्रश्न आपको पूछ लूं। अगर उस प्रश्न का उत्तर अगर आपने मुझे दे दिया ना गुरु द्रोण, मैं मृत्यु को भी प्रेम से गले लगा लूंगा। मुझे आज्ञा दे दो गुरु द्रोण। गुरु द्रोण आज्ञा देते हैं, पूछो जयद्रथ तुम क्या पूछना चाहते हो। तो जयद्रथ कहते हैं कि सारा संसार ये क्यों कहता है कि अर्जुन बड़ा सौभाग्यशाली है कि वो आपका शिष्य है, हम सब आपके शिष्य हैं। आपने किसी और योद्धा को या मुझे अर्जुन जैसा महान क्यों नहीं बनाया, आपने अर्जुन को ही महान क्यों बनाया। आई फील दिस इज अ क्वेश्चन एवरी बैक बेंचर वांट्स टू नो। नाउ ओवर देयर ना गुरु द्रोण सेज, अगर सारा संसार ये कहता है कि बड़ा सौभाग्यशाली अर्जुन के उसका गुरु गुरु द्रोण है, तो यह सत्य है। सत्य तो यह है, सौभाग्यशाली गुरु द्रोण है कि उसका शिष्य अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन का गुरु कोई भी होता अर्जुन महान बनता। और मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। तुम सब जब आते थे विद्या प्राप्त करने मुझसे, मैं तुम्हें कहता कि इस निशाने को चीर दो, अगर तुम नहीं चीर पाते मैं तुम्हें कहता कोई बात नहीं जयद्रथ, तुम अगले दिन आके कोशिश करना। तुम अगले दिन आके कोशिश करते थे जयद्रथ, परंतु अगर अर्जुन उस निशाने को नहीं चीर पाता और मैं यही अर्जुन को कहता कि अर्जुन कोई बात नहीं अगले दिन आके कोशिश करना, अर्जुन तब तक घर नहीं जाता जब तक वो निशाने को नहीं चीरता। मैंने अर्जुन को नहीं कहा तुम अपने कक्ष में जाके विश्राम करते थे, अर्जुन अभ्यास करता था। मैंने अर्जुन को नहीं कहा तुम जाते अपने कक्ष में जाके सो जाते थे रात को, अर्जुन अंधेरे में जाके जंगल में अभ्यास करता था। मैंने अर्जुन को नहीं कहा। मैं गुरु जयद्रथ, मैं तुम सबको ज्ञान दिया है, मेरा धर्म है तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देना, परंतु पूरे जीवन में तुमने कभी मुझे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है। जीवन के अंत में आके पूछ रहे हो कि अर्जुन क्यों महान बना। ये मुझे बचपन में पूछते मैं तुम्हें बता देता अर्जुन महान क्यों बना। अर्जुन महान इसलिए बना जयद्रथ क्योंकि वो महान बनना चाहता था। तुम महान बनना ही नहीं चाहते थे, तुम विश्राम करना चाहते थे, आराम करना चाहते थे, सोना चाहते थे, पार्टी करना चाहते थे, दोस्तों के साथ घूमना चाहते थे, और तुम चक्रवर्ती राजा बनना चाहते थे। अर्जुन जानता था अगर उसको इतिहास में अमर होना है, अगर उसे सर्वश्रेष्ठ बनना है, अगर उसे कोई कार्य करना है जिसमें वो महान होगा, तो उसे सुख को त्यागना होगा, उसको नींद को त्यागना होगा, उसे विश्राम को त्यागना होगा, उसे हर पल हर क्षण अभ्यास करना होगा। और ये त्याग मांग के नहीं दिया जाता है जयद्रथ, ये अंदरूनी होता है। अर्जुन जानता था वो क्या कर रहा है, तुम नहीं जानते थे, इसलिए अर्जुन महान बन गया। Now, if you look at even Ramayana, you'll probably realize that professional glory comes at a personal cost. Professional glory comes at a personal cost. If you want to do something big in life professionally now, someone in your family, someone in your relative has to pay the price. Someone has to pay the price. And if you want personal glory, it will come at a professional cost. And life is all about making the choices. Life is all about choosing which cost you want to pay, when you want to pay. Whichever option you select, I sincerely request, don't regret that choice, because that choice you have made. Now, last, and then we probably close over here. Oops, sorry. Now, over here now, this is one of the best lessons that I had from Bhagavad Gita, but from a very different angle. You know, my ma'am actually explained me. So my first manager, Preeti ma'am, she gave me a lot of context of career. So she asked me a question. After 3-4 months, we settled down, first job, campus to corporate and all those things. So she's asking, Rishi,
did you select this job voluntary or did someone keep a gun on your head? I said, ma'am, कैसी बातें कर रहे हो? I selected voluntary. She said, did you read the appointment letter? I said, हाँ, I read the appointment letter. You understand what salary you're going to get? मैंने, yes, I understand what I'm going to get. बोला, now remember one thing for life. She said, remember for life. भले तू बिजनेस डाल खुद का आगे जाके, तेरे को अब जीवन में अगर तेरे को पैसा ज्यादा कमाना है ना, तेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. You'll have to focus, you have to increase your productivity to earn more money. Because if you keep looking at your salary and then you give your input ना, you'll never grow in life. अगर तेरे मन में ये बात आ गई ना कि इतने पगार में इतना ही काम मिलेगा, एक चीज याद रखना, इतने काम में भी इतना ही पगार मिलने वाला है. तेरे को अब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. And there will be times where the result will be not be in your favor. There will be times when you're totally lost. There will be times you'll feel I've given 100%, yet I did not get what I deserve. Now over there are two things that you can do. First thing is that you can put the entire blame on external factors. मार्केट खराब है, इकोनॉमी खराब है, कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिसी अच्छी नहीं है, रेट अच्छा नहीं है, मेरे को मार्जिन अच्छा नहीं मिलता है, कितना टफ मार्केट है, सब कुछ बोला तू हमेशा दूसरों के ऊपर डाल सकता है. बट जब तक तू दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल रहा है ना, यू विल नेवर गिव रिजल्ट, यू विल ऑलवेज गिव एन एक्सक्यूज. But if you want to grow, you'll have to check internally what was your mistake, where you went wrong, what you could have done better. The more you focus internally, you'll realize there is some scope of improvement. Today or tomorrow you'll realize that if you want to grow in life, karm kar, phal ki chinta mat kar. On this note, we'd like to close over here. Thank you so much for your time. Thank you so much for your energy. Thank you so much.